What made you get into this whole? Because when I started my journey, there was nobody to guide me. I was a guinea pig. I've tried and tested everything on myself. Somebody said, "Tu Rock'll पी ले, तेरी body बन जाएगी, I'll drink." I was like that. So that hunger was there. If you have hunger and you want to reach somewhere else, see, I don't know this destiny or what, but I believe in manifestation. I'm very hardcore believer of manifestation. When nobody was there and I was cursing myself in the train, like when I was selling candies. My journey was not that easy. Like people what see right now, it was not that easy. Tell a to little reach. about your journey. What has been the most right from एकदम शुरू से? शुरू से my father. See, what was one of the let's most challenging stages of your journey? Let's take a. I will not say very rich, but well stable family. 3 kids, husband, wife, and the father is a contractor for a particular company, and people work under him like 5,000, 6,000 people. And we were blessed with a lot of servants in the house and like good house, everything, and things like in family things goes bad. Like some, I don't know what we can call karma or whatever. Then the father got paralyzed very early. Like this, I'm talking about 85, 84. And बोलते हैं ना बचपन ही में हम जवान हो गए थे. It was like that. So we have to sell out a whole house. We have to sell out each and every penny in the house. I've seen everything, and we are on the road next day. And from there to work, start any This work. was in Mumbai? That was in Ambernath. Okay. So to start with it, like I've worked my ass off from the candy seller in the train to paper line to sweep somebody's house, everything. Before becoming a trainer. Yeah. People don't know my journey. Like बताओ, let people know your journey. I've seen it. Like मैं स्कूल भी करता था by simultaneously. मैं अंबरनाथ से दादर by train I used to sell candies to get some amount of money to help my house. मेरा भाई भी करता था. He used to work in a canteen. मेरी sister बहुत छोटी थी. Mom housewife का काम करती थी. Well, that time she was teacher and she left everything because of my father, because my father was doing really well. Really well means we could travel those days in flights. You spoke about manifestation and we know, सबको पता है, इनका display picture ही वही है. Manifestation. कभी change ही नहीं हुआ है. I don't know the last time you change your display picture. Yeah, sometime I do change. Correct, but घूम फिर के वो वापस वो manifestation वाला ही display picture आएगा. जी. Is it that this whole, even back then you manifested that ये सब you will be sailing through, and did you manifest all of manifestation, this? I'll tell you this, the whole funda. So I was selling those days, and I was like cursing myself. This is what I said. See, what your tongue is too strong. If you abuse somebody, is also not good. And if you say something, might something happen to that, and then you'll get regret. So what we say, भगवान जैसे बोलता है कि हमारे ज़बान में बोले हमारे ऋषि मुनि में ताकत होती थी तभी बोलते थे श्राप दे दिया. It used to happen, like. So हमारी ज़बान में बहुत पावर है और हमारा ब्रेन हमारे लिए बहुत काम करता है. Correct. So जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, बट आई वॉज कर्सिंग. आई डोंट नो हाउ दिस मैनिफेस्टेशन वर्क, बट आई टेल यू नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार मैं कब ऐसा जगह पे पहुंचूं जहाँ पे मेरे को ये स्ट्रगल देखना नहीं मिले, या मेरे को when you start doing that ना, और चीज़ें जो आपके पास आनी होती है वो भी नहीं आती. You have to just manifest and let go. But then put in the work. Yeah, you have to put work. Without work, how things will move? I am a very, very strong believer in manifesting, right? I think जहाँ तुम
दिमाग जहाँ नहीं पहुंच सकता वहाँ खुद तो नहीं पहुंचोगे कभी. Exactly, Right? exactly. And it is the easiest for you to take your mind reach somewhere. Yeah. अगर But दिमाग if से ही नहीं पहुंचो, बट इसका ये मतलब नहीं है मैनिफेस्ट करो और बैठो. नहीं नहीं, अब मैनिफेस्ट करता और नहीं करता तो मैं अभी भी वही शायद काम Correct, करता correct. रहता. मेरे को मैनिफेस्टेशन कभी रियलाइज हो गया, मैं आपको बताता हूँ. मैंने एक जिम में काम करने लगा था स्वीपर का. आई वुड डन अ स्वीपर जॉब In the gym. इन द जिम. यस. तो फर्स्ट आई स्टार्टेड एज अ स्वीपर इन द जिम. आई हैव नॉट स्टार्टेड एज अ लिफ्टर. और स्वीपर का काम करते करते मैं अपना, अशोक और अनिल मेरे को बुक्स कौन भेजते सा थे. जिम है? Which gym is this? Where It was this? was Q's gym in Santa Cruz. All the MTV star used to come there. Celebs was there. MTV star was there. भैया जिम से स्टार्ट किया था मैंने. तो भैया जिम में मैं साइमल्टेनियसली पावर लिफ्टिंग भी करता था थोड़ी बहुत, दरेकर सरांच्या अंडर. और सो आई नो पावर लिफ्टिंग ऑल्सो. सो और स्वीपर का काम करता था क्यूज जिम में. I think everyone watching, doesn't matter whether you are a trainer or whatever field you are in, you know, I think you manifest, you believe in yourself, you do good and you put in the work. I think that's by and large the secret sauce for success. Yes, but also when you do manifestate, when things comes to you, it will not come as a good. There'll be a lot of bad things come to you. Like universe will also test you. Yeah. He'll put you through. Can test constantly. Constantly test means they हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, वो देखिएगा तुम्हारी औकात है क्या ये सब चीज़ झेलने की. Exactly. तुम ले पाओगे क्या उस चीज़ को. वो बोलते हैं ना कि बच्चे को अगर आइसक्रीम पार्लर पे लेकर जाओगे और बच्चा बोल रहा है कि मुझे 4 स्कूप चाहिए, 4 स्कूप चाहिए, 4 स्कूप चाहिए. पहले एक स्कूप देखो तो लेके चल सकता है क्या? 4 स्कूप लेके गिरा दिया, चारों गिर गया. चारों गिर गया, वैसे ही होता है. Correct, चारों स्कूप गिर गया. अंडरस्टैंड देयर इज व्हाट ट्रिक ऑल्सो. बच्चा जब मैनिफेस्ट करता है ना तो माँ बाप ला के दे देते हैं, बट उसके दिल में कुछ होता नहीं. वो सिर्फ बोल के छोड़ देता, मेरे को ये चाहिए, खत्म, गॉन. अब ये कौन कंप्लीट कर रहा है? मॉम डैड अंकल आंटी, कोई ना कोई ला के दे रहा है. आपको पता भी नहीं होगा, बच्चे ने बोल दिया है और वो कोई ना कोई लाके दे देगा. दैट इज बच्चे. दैट्स अ टेक्निक यू शुड हैव इट इन योरसेल्फ. दैट्स हाउ यू शुड बी बिलीव. Actually, I have these questions for Dr. Rahul and Akshay also. ये question तो मुझे सबको ही पूछना है because these questions really, you know, inspire all of us. कि what has been one of the most challenging phases or a phase of your life, your journey, and how did you overcome? So बचपन से लाइक एकेडमिक में बहुत वीक था मैं, बिकॉज मेरे को डिसलेक्सिया है. सो जो तारे ज़मीन पे मूवी जो अभी आई है वो मेरे साथ वो पहले हुआ था तब ऐसा कोई मतलब पता भी नहीं था. पता भी कि नाही था की dyslexic क्या है. स्कूल में बताया गया था की अक्षयला स्पेशल स्कूलला टाका, कारण हा पुढे शिकू अच्छा. शकत नाही. एक्झॅक्टली, बिकॉज मैं हर चीज़ उल्टा लिखता था, जमता ही नहीं था मेरे को. तो वो टाइम बचपन में कैसा था, माई फादर माई मदर लाइक एवरीवन, ते घर पे कैसा रहता है, जो ब्राइट स्टूडेंट रहता है ना वो तो उसके ऊपर थोड़ा आर है, ही इज़ डूइंग गुड, शी इज़ डूइंग गुड. और जो रहता है ना तो ही वॉज लाइक, तो मेरे ऊपर कैसा, मैं तब से मैं कुछ नहीं तो बट मैं उस वो टाइम स्पोर्ट्स में आ गया था, बट मैं कुछ भी मेडल लाऊँ कुछ भी लाऊँ है एकेडमिक में क्या है. सो वो चीज़ होता था. और मेरे पिताजी, मतलब मैं अभी वो प्राउडली बोलता हूँ कि मेरा एज भी कम था वो टाइम, और कुछ भी घर पे कुछ भी काम आए, बिल्डिंग में काम आए, छोटा मोटा काम, तो मैं उठा के ना वो रखता. तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, मेरा बेटा कुछ नहीं तो हमाली में कमाएगा. या आई यूज्ड टू से दैट. और उसके बाद में बीइंग हेटेड, और उसके लाइक राकेश सर सेड कि मतलब आईसी लेवल से आके मैं आईसीबी लेवल देखा हूँ कि मेरे को फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग. तो वो टाइम जिम वगैरह, तो मतलब जिम ये चीज़ था नहीं, मतलब मैं इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था वो टाइम जिम के लिए. तो पैसा कमाने का था, तो घर पे भी देना पड़ता था, खुद के लिए भी लगता था. तो वो पीताम्बर एक पाउडर आती थी, वो मैं बेचता था. तो रात को मैं एक बार आ रहा था, मेरे को ना 7 लड़का लोग ने मारा. अच्छा. हाँ, 7 लड़का लोग ने पकड़ के मारा. वो पाउडर भी लेके गए, पैसा भी लेके गए.
तो उसके साथ में मेरा एक फ्रेंड है, आई वांट टू टेक हिज नेम, मयूर कदम. सो वो बोला कि अक्षय स्ट्रांग बनना पड़ेगा अभी अपने को. तो हम लोग को जिम जाना था. तो हम जिम तो जा नहीं सकते, तो थाना में स्टेडियम है दादोजी कोंडेव. वहाँ पे एक आदमी काम करता था, वो था गार्डनर था. वो बोला कि सुबह कोई आता ना, तुम लोग आके वर्कआउट करो. तो हम लोग आके वहाँ वर्कआउट करते. तो एक दिन वहाँ पे थाना के कोई पुलिस आ गए थे, उन्होंने हमें पकड़ा और हम लोग को कोमड़ा करके बिठा दिया फॉर अ वाइल. तो उसके बाद में जिम का जर्नी तो ख़त्म नहीं करनी. तो थाना में माउली मंडल करके एक जिम है. दैट टाइम 10 रुपीज़ अ मंथ. हम लोग को पता नहीं था, बाद में हम लोग पता किया. तो देयर माई जर्नी स्टार्टेड. हेमचंद्र ओड़ेकर उन्होंने जो दिमाग में था कि जिम में जाके बॉडी पटाख से बनती है, वो निकाल दिया, औकात पे लेके आए. सूर्य नमस्कार मारो, पुलअप्स मारो, बैठक मारो, उसके बाद ही वी कैन, हम लोग आपको वेट को टच करने देंगे. ये तो ट्रेडिशनल था हर ये एक gym. ट्रेडिशन हाँ, वो लाइक, बट वो अभी ऐसा लगता, वो टाइम लगता था क्या हम लोग रुक के, बट अभी ऐसा फील रहता है बिकॉज ऑफ दैट ऑल द मूवमेंट. आई डोंट नो डॉक्टर वेदर इज साइंटिफिकली राइट और रॉन्ग, बट हम लोग ने, आई एम नॉट जोकिंग कि बैठक जो फ्री स्क्वाट्स रहते हैं 400 400 500 500 ये मारे. इट वाज स्टैंडर्ड. जब was तक standard. Even भैया जी- बेंचमार्क है, एक्स नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार, एक्स नंबर ऑफ बैठक बांद्रा- नहीं होगा, बांद्रा का जो आपको भैया weights जिम को है, हाथ लगाने नहीं मिलेगा. बांद्रा का जो भैया जिम है, वहाँ पे एक सर होते थे. 100 पुलअप्स, 100 नमस्कार, 100 बैठक और 100 डिप्स. जब तक नहीं मारो अंदर जाना नहीं. अंदर जाना नहीं. The डॉक्टर day राहुल, you what do- finish. what- But can I tell you something? This everything would be happened at least within 3 or 4 months. By the time you realize you have already made your body, like you come in a structure. या क्योंकि पूरा हो गया ना. एग्जैक्टली. यू सी, इसमें कुछ भी नहीं बचा है. बाय एंड लार्ज आपका कंप्लीट बॉडी. इज देयर एनीथिंग डॉक्टर जो इसमें रह गया? नहीं, पूरा कंपाउंड मूवमेंट है. मैं मेजॉरिटी ऑफ मसल यूटिलाइज हो ही रहा है Utilize हो गया. इसमें. खाली छोटा मोटा जो काफ वाफ है, Exactly. वो नहीं, ठीक है, काफ में भी टेंशन रहेगा बट ज्यादा but नहीं रहेगा. हो गया by and large. But डेफिनेटली होगा. do you think I think let me ask you this, क्योंकि अब तो कोई नहीं करता है जिम में. मुश्किल से यू विल सी एनीबॉडी डूइंग पुलअप्स कर रहा है तो भी वो असिस्टेड पुलअप कर रहा है. डिप्स कर रहा है तो वो डिप्स भी असिस्टेड डिप्स है. करेक्ट? What do you think? Do you think that to all of you? I think this question is to all of you. Do you think this should be continued as a trainer, as an academician in this field? Do you think कि हर member को if not that number of reps ये start करना है, यहीं से आपका progression शुरू होगा? Do you think कि नहीं ज़रूरत है? Or do you think it is outdated and we नहीं, progress in the डेफिनेटली right way? इसकी ज़रूरत है. तो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी लोग ट्रेडमिल पे वार्म अप नहीं करते हैं. ये ट्रेडिशनली क्या पढ़ाया जाता है, कम से कम 7 मिनट का वार्म अप करो. Correct. आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल को अच्छे से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा. बट काफ़ी लोग करते नहीं है. तो मैं जब जिम में जाता हूँ तो मोस्टली 100 आउट ऑफ 2 to 3 पीपल्स वार्म अप करते हैं. तो उन लोगों के लिए क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर भी रेज होगा, ब्लड प्रेशर भी रेज होगा. तो वो क्या करता है, अगर लैट पुल डाउन करना है, उनका मेन सेट 120 पाउंड का है, बट उससे पहले 30 या 40 पाउंड से 30 रिपीटेशन ले लिया, 50 रिपीटेशन ले लिया. तो उससे क्या हो जाता है, माइंड बॉडी मसल कांटेक्ट भी अच्छे से होता है, बॉडी वार्म अप भी होती है. इंस्टेड ऑफ दैट, जिस दिन आप चेस्ट कर रहे हो उस दिन आप कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो. जब बैक कर रहे हो ठीक है, असिस्टेंट पुलअप्स भी कर लो, बट कर लो, डेफिनेटली हेल्प. Yeah, good point. करो कम से कम. करो. Nowadays nobody does the free hand. Nobody. Like you will see hardly somebody is doing a free hand. I am Mostly guilty of. ectomorphs. I am guilty of not doing it enough, I would say. नो, बट अभी जो नए लड़का लोग भी जिम में आते हैं, अभी रिसेंटली वन ऑफ माय क्लाइंट्स सन, वी स्टार्टेड ट्रेनिंग. दैट गाय इज नॉट हार्डली इन 11th स्टैंडर्ड, अभी जाएगा. तो ही बॉट मी ऑल द यूट्यूब का व्हिडिओ. भाई अक्षय सर अशी बॉडी बनवायची, अक्षय सर असा वर्कआउट करायचा, अक्षय सर मला हे करायचं आहे. अरे बोललो ठाम, बोललो एक लिस्ट एक काहीतरी बनव. नाही मला वॉल्वोरिन सारखं पण व्हायचं आहे मला. बोला सगळं बनू, बट एक कुछ एक तो बताओ भाई क्या है. तो क्या 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 वर्कआउट किया है. तो हाँ, मेरे को सब आता है, मैं देखा हूँ. आई एम नॉट जोकिंग. अभी वो 11th स्टैंडर्ड में जा रहा है. मतलब आई एम हैप्पी कि हम लोग का जनरेशन बहुत फिट था.
आय एम नॉट दादा, मी त्याला ट्रेडमिलवरती 5 मिनटं वॉक दिला, जनरल वॉक. 5 मिनटामध्ये ही वॉज लाइक कि इससे तो बॉडी ने बनने वाला. बोलो ओके चलो आओ नीचे, 2 मिनट में नीचे लिया. Free अच्छा, वो squat- 5 मिनट भी नहीं किया. नहीं उस पर बॉडी बनती नहीं अक्षय से. तो नीचे लिया. दैट गाय इज वेरी स्वीट. तो स्क्वाट करने लग गया. स्क्वाट में आई वॉज फॉर्म देखा दादा, आई एम नॉट जोकिंग कि 90 डिग्री भी नहीं उसका हो रहा था. फ्री स्क्वाट. फ्री स्क्वाट. तो आई एम एंड हिज फादर इज लाइक कि अक्षय तू करेगा वो. सो अभी हो गया टाइम, आई एम 1 मंथ हम लोग काम कर रहे हैं. उसको मैं फ्री हैंड वर्कआउट दे रहा, लाइक डॉक्टर सेड. नाउ ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज स्ट्रक्चर आई सी योर बॉडी स्पीक्स. करेक्ट. तो आईने के सामने जाके थोड़ा 2 छोटा छोटा बिस्किट आया, थोड़ा चेस्ट का लाइन दिखा, बायसेप शोल्डर का लाइन दिखा. तो अक्षय सर असंच जर कंटिन्यू केलं तर वॉल्व्हरिनपेक्षा मी चांगला होईल. बोलो दॅट्स व्हॉट आय वॉज सेइंग ऑन अ फर्स्ट डे. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पब्लिक भूल गई है बेसिक मूवमेंट्स भी. I तो feel to take it a little ahead, okay? हम तो बात कर रहे थे कि वार्म अप नहीं करना है और ये बेसिक मूवमेंट्स नहीं करना है, करेक्ट? डायरेक्ट इक्विपमेंट्स, नथिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई थिंक the advancement in all the equipments that we are seeing is one of the best things because it just, as Rakesh sir says, the idea of not just Smith machine, any machine is to give you better safety and stability, correct? So that's definitely a good advancement. But जैसे अक्षय दादा बोले कि लोगों में पेशेंस नहीं है, करेक्ट? तो अगेन दिस क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू. इज दिस व्हाट लोग बहुत बोल देते एकदम इजीली, ट्रेनर स्टेरॉइड दे देता है, correct? And I tell that it's not just the trainer, that impatient client is also pushing the trainer के भाई मेरे को 3 महीने में रिजल्ट दो. नहीं आया, ट्रेनर ने तो आपको वार्म अप करने बोला, आपको वो नहीं करना है. यू डोंट वांट टू पुट इन एनीथिंग, करेक्ट? वेयर डू यू सी, मतलब who's more responsible, you know? Is it the client pushing the trainer कि मुझे रिजल्ट फास्ट चाहिए, or is it that I feel that it's from both ends. How do you see we can reduce this? Because you know that how for a तो मैं एक 2014 से एजुकेशन में पढ़ाता हूँ. तो मेरे स्टूडेंट्स ही काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं और वो एक पिग भेजते मुझे, सर इसकी तरह मुझे बॉडी बनानी है. मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, इसकी तरह बन जाएगी बॉडी, बट इसकी बॉडी बनने के लिए कम से कम इसको 4 या 5 साल का टाइम लगा है. तू ऐसे नहीं होगा विद इन 3 months मुझे पे कर देगा, राकेश सर को कुछ पे कर देगा काफ़ी सारे हैंडसम अमाउंट और तेरा काम हो जाएगा. उसको टाइम कितना लगा है. और तू मार्केट में जाएगा, तुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलेंगे, हाँ ठीक है इससे तो पैसा आ रहा है, क्यों छोड़ना है, 50,000 बड़ी अमाउंट होती है, दे दे 50,000 रुपीज़ कर देंगे. फिर बाद में होता कुछ नहीं. और उनको क्या चाहिए होता है, उनको ऐसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं. तो मैं बोलता हूँ तुझको, वो बोलता है मुझे कंपटीशन खेलनी है सर, बॉडी बिल्डिंग खेलना है. ओके कब का खेलना है, 2024 फोटो देखता हूँ. नॉट पॉसिबल. अगर तुझे करना है, मेरे अंडर काम करना है, कम से कम 1 साल तक तो रहना पड़ेगा, पेशेंसली रहना पड़ेगा. तेरा प्लान हॉलीडे अभी से डिसाइड करना पड़ेगा. तेरी फ्रेंड की, ब्रदर की, किसकी वेडिंग तू कितना ऑफ लेगा, ये सब मुझे बताना पड़ेगा. सेलिब्रेट करना है, कब कितने टाइम तुझको गोवा जाना है, और कम से कम 1 साल का टाइम तुझको लगेगा ही, मतलब लगेगा. उसके आगे वो बोलता है नहीं सर कुछ ये करो वो करो ये डालो, होगा नहीं. मैं तुझसे पैसे लूँगा, तू भी मुझे वापस से परेशान करेगा. फिर उसको भी समझ में आता है धीरे धीरे ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि किसी की बॉडी ओवरनाइट विद इन 3 months बनना तो नॉट पॉसिबल ही नहीं है. सो डू यू थिंक दैट अगर हमको क्लाइंट्स पुशी है, क्लाइंट्स को रिजल्ट्स फास्ट चाहिए, करेक्ट, एंड देन द ट्रेनर थिंक्स कि ठीक है उसको रिजल्ट फास्ट चाहिए, वी हैव अ फ्यू सॉल्यूशंस वेरिन वी नो कि कुछ स्टेरॉइड दे दो तो थोड़ा पीडी आ जाएगा, द परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग सो टू से, और थोड़ा इसकी जर्नी फास्ट ट्रैक आ जाएगी, करेक्ट. एंड लेट्स से फॉर अ जनरल पॉपुलेशन स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथलीट्स, उनको हटा देते हैं, ओके. अगर इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट, ओके, हाउ डू यू थिंक अ ट्रेनर कैन अप्रोच, what is the best thing that the trainer can do for that client to like make them understand कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, or rather even specific questions, okay. We all know by and large what are the basic
PDs that somebody would start with. Okay, be it let's say I think the first line रहता है trainer बोल देगा oral से start करो, correct? An hour से start कर देगा, let's say that, and then फिर the injectable comes in. If for a beginner, if a trainer says कि आप ये कर लो, correct? Physiologically, what are the downsides that you would want them to know that these are the downsides and therefore you should not get into this? ओके तो एग्जैक्टली ना, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ट्रेनर का खुद का काम आसान करने के लिए वो क्लाइंट को परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग के लिए पुश करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि उनका काम पीडी कर रहा है कुछ, जैसे ही किसी की बॉडी में एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन चला जाएगा तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हर एक ट्रेनर का दिमाग में ये सेट है कि भाई तुम पीडी लो और बॉडी बनाओ, Which needs to change. but this is what it is. There is a demand and there's a supply. There's a lot of demand. But I think one way which I very strongly, you've known me, right? I think there are so many people that I've discussed is, Akshay, there are so many times that I've come so close. When we went to the last camp with Ben, at that time I was very clear कि अब start करना है, correct? I know. Very clear. We went there, Rakesh sir, I, Ben, changing room में, he said, he saw me and he's like, is your nutrition dialed in 100%? Is your training dialed in 100%? Is your sleep dialed in 100%? I said no. He said, you don't need stuff. There's still a lot that you can do. Exactly. Correct? So I was very clear. But again, I come from a time wherein I've done this, तो वो patience आ गया. But आज के Instagram के time पे, but what I was coming at it, that we understand physiology. We have basic awareness कि उसका downsides क्या है. आज के बच्चे लोग को पता नहीं है. ट्रेनर ने बोला कुछ नहीं होता है, ले लो. I want you to enlighten them के क्या क्या potential downsides है, even of just the oral. ओके जब हम पढ़ाते हैं पर बॉडी राकेश उधर फिटनेस एकेडमी में, तो बेसिकली 8 आवर का लेक्चर इसके ऊपर ही डेडिकेटेड होता है कि इसके निगेटिव साइड इफेक्ट डाउनफॉल क्या है। तो बेटर वे आपके पास काफ़ी सारे, जैसे आपने Superb. बोला I कि think if you're doing this in the academy, sir, kudos. I think वो आर्ट को, I don't think so anybody is doing that. I don't think so there is anybody who's touching upon this topic. तो एग्जैक्टली होता क्या है कि आप जैसी पीडीज इंजेक्ट करते हो, इधर इट इज़ ओरल और इंजेक्टेबल, बॉडी खुद का प्रोडक्शन बंद कर देती है। Correct. तो फिर उसको भी वापस रिस्टार्ट करने का मैकेनिज्म है, बट काफ़ी सारे लोगों को वही पता नहीं है। तो लोग वर्ड यूज़ करते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी, वॉश आउट, बट उसका एक प्रॉपर वे होता है। तो डाउन साइड अगर हम बात करेंगे तो लोगों के अंदर फोबिया बैठ जाएगा। जैसे सबसे नहीं बैठने दो बिगेस्ट है ना, मैं तो कहता हूँ बिगेस्ट बैठने दो. डाउनफॉल है क्या है कि जैसे ही आप परफॉर्मेंस एनहांसमेंट लोगे, टेस्टोस्टेरोन का एक मेन एक्शन होता है एनाबॉलिक एक्शन। तो वो एनाबॉलिक एक्शन क्रिएटिंग ए न्यू सब्सटेंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो सिर्फ मसल नहीं बना रहा है, वो रेड ब्लड सेल का काउंट भी बढ़ा रहा है। तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल कितना होता है, अगर हम एक ड्रॉप रेड ब्लड सेल का लेंगे 35 लाख से 55 लाख पर क्यूबिक mm, यानी सिंगल ड्रॉप के अंदर 35 से 55 लाख से। तो जब भी कोई पीडीज बॉडी के अंदर डालता है तो 55 से ये वैल्यू बढ़ के 60, 65, 75 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 20 लाख से आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है सिंगल ड्रॉप के अंदर, सो दैट कैन क्रिएट अ फ्रिक्शन इनसाइड द ब्लड वेसल, और यहाँ से अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो टेक्निकली आफ्टर द एज ऑफ 30 हर किसी की बॉडी में अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बट अगर कोई पीडी ले रहा है, उसका आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बढ़ता ही है, तो फिर उसका प्रोग्रेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल पर्सन है, उसका हो गया 30 से स्टार्ट हो गया, बट उसके साथ कोई पीडी ले रहा है तो उसकी प्रोसेस ज़्यादा फास्ट अप हो जाएगी, और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में मेल की 68-69 है, उससे कम होके वो 55 तक आ सकती है। एंड डॉक्टर राहुल, नाउ सिंस वी अब ये बात छिड़ गई है पीईडीज की, और जो हम बात कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन की, okay, again there is something very common. Earlier, you know, a little while back when we were talking about workouts and stuff,
you even spoke about blood pressure rising, body temperature rising during the workout, right? And we know that how a lot of trainers, general population to nahi hai, but we know that there is a compound which a lot of trainers are taking, okay? And नो मुझे समझ में आ गया, ये ट्रेनर तो ले रही है, बट जो काफी टाइम से जिम कर रहे हैं वो भी एथलीट ले है, रहे वो हैं। भी डेफिनेटली ले रहे हैं। I और हर would, किसी ने उनके जिम में देखा होगा, ये चेंजिंग रूम के अंदर नीडल्स होता है, सिरिंज होता है, तो वो उसी चीज के लिए होता है, So I क्योंकि think I पीडी think जो we होता should है ना, I think we should, if you can firstly name that compound. I think we are talking about termin, Termin, all of us, exactly. right? And if you can enlighten termin क्या करता है, लोग क्यों ले रहे हैं, and what is really the threat, why is it that one should really be cautious or rather just not get into that path? ओके, तो For बेसिक me, I personally will not advise. Not advisable. Don't take it. Don't go. We've seen people going mad. नो इवन लाइक दादा सेड की रिकमेंडेशन दूंगा नहीं, और मुझे कोई लेते हुए भी दिखता है ना, सॉरी दादा, बट मैं बीच में जाके बोल देता हूँ उसको। अच्छा, बट मैंने देखा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कोलैप्स के, जो आई थिंक फिटनेस में हुआ था। बहुत 3-4 जन कोलैप्स होके गिर गए थे, एंड दे वर ऑन टू इट। देयर इज नॉट ओनली टर्मिन, देयर इज समथिंग कॉल्ड AMP, AMP. It's So a- this is it's Doctor. the same family. Yeah. And what it does, it gives you a one rush. Doctor will tell you the chemical reaction, how it works, but majority it gives you a rush where you don't feel tired and you get that rush, lifting rush. So that's why So doctor, I think in the medical field, it is by and large used by doctors when there are It is a cases of emergency drug. It is a emergency drug, life-saving right? It's a drug. life-saving drug, correct? When the blood pressure is dropping, that's Dropping. when you give that to the patient, एग्जैक्टली right? एग्जैक्टली How does that affect when a person is taking? If you can just quick, thoda sa technical hoga guys, but doc, if you can take it into a technical zone, that what's the physiology and what happened, then why is it a threat? तो अगर मैं फिजियोलॉजी में ज़्यादा चल जाऊंगा तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेमैन पर्सन के लिए। तो मैं एक जनरल यूज़ बताता हूँ। टर्मिन जब भी कभी एनेस्थीसिया दिया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली कोलैप्स की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। सेकेंडली रोड साइड एक्सीडेंट होता है जहाँ काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है, उस टाइम भी जब सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स होती है तो टर्मिन दिया जाता है। तो टर्मिन क्या करेगा, इन शॉर्ट एक ही चीज़ को ध्यान में रखो कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ा के सिस्टम को कोलैप्स होने नहीं देगा। ये हो गया इमरजेंसी केस। बट कोई वर्कआउट से पहले टर्मिन लेता है, उसका क्या इफेक्ट होता है? तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर तो वैसे भी बढ़ने वाला है हार्ट रेट बढ़ने की वजह से, बट टर्मिन लेने से और ज़्यादा बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से रश क्यों मिलता है, वर्कआउट और अच्छे से क्यों होता है, तो उसके पीछे एक रीज़न है कि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मसल के अंदर आपका ग्लूकोज डिलीवरी बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ेगी। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन से Lactates, लैक्टिक एसिड है, correct. लैक्टिक एसिड अगेन कैल्शियम है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो उस वजह से क्या होगा, जैसे ही ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट होगा मसल के अंदर, आपका रिपीटेशन या फटीग कह लो, तो फटीग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ाएगा और वहाँ से मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को निकालेगा। तो डेफिनेटली वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इफिकेसी बढ़ेगी, बट लॉन्गर रन के लिए इतना अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो दैट कैन कॉज ऑल्सो मायोकार्डियल affect इंफ्रैक्शन, the ब्रेन brain. स्ट्रोक, Yeah. ब्रेन स्ट्रोक, काफ़ी सारी डेंजरस चीज़ें हो सकती है। और इट इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन। अगर ये एक बार लग गया ना तो फिर तो It is an addiction, right? People Definitely it is. end up getting addicted to it. ऑफ कोर्स क्योंकि उस रश के बिना फिर वो वर्कआउट ही नहीं होता। नहीं होता Start है। with like 1 ml and 2 ml and 3 ml and 3 shots, 4 shots, 5 shots. I know somebody who's died because of that. I know it. I'm not taking the name, but I think it's and he was so addictive. Make rest of peace of his soul. I can say that much only.
I think it's great that you are covering in your course that why one should stay away from that and what's the physiological downside. Dr. Rahul Rakesh sir, what more? Let's talk a little about what's happening at your academy front. What more are you looking to get, or what more are you looking to introduce? See, the concept to open an academy to give a knowledge and knowledge in a sense, little deeper knowledge. Now everyone does the CPT, but nobody upgrade. It's like you're taking an admission in a school and you're in one class only. You're not moving forward. You're still there. You're doing a CPT, and 10 years after, you're saying in my same knowledge is going to work. No, there is a lot of things updated. And people, there are dominating academies or there is dominating people out there. They will say, no, this is right and this is wrong. No, it's not going to work for everyone. Everybody is different. So the simple science of exercise is the same. Biomechanics won't be changed. But upgradation is very important in terms of knowledge, in terms of movement, in terms of nutrition, in terms of everything. What's your take on? I see a lot of people upgrade only for the sake of getting those extra points to keep their earlier certifications. What point? You tell me how many valid- people upgrade. validations, right? How many And people- How many how people many- actually upgrade to learn more? How many trainers How can do we you change like, that? How, I how? think we all know that, or if you would like to throw some light, how do you look at the potential for trainers in now country? ओके तो एग्जैक्टली क्या होता है कि ट्रेनर डूइंग अ सीपीटी कोर्स सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स 3 महीने का 4 महीने का उसने कोर्स कर लिया तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 12,000 रुपीज़ वो इंडस्ट्री में कुछ ट्रेनर्स को देखता है दैट आर अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट 5 lakhs 8 lakh 10 lakh रुपीज़ पर मंथ तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि वो उसने भी सीपीटी किया था बैक इन 2008 और मैंने भी सीपीटी किया है 2018-19 दैट पर्सन इज अर्निंग मिनिमम पकड़ लो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ और दैट पर्सन इज जिसने सीपीटी किया है वो अर्न कर रहा है 10 to 12,000 रुपीज़ तो इसमें अपग्रेडेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है जैसे कि अगर किसी को MBBS MS या MD बनना है दैट पर्सन लर्न मेडिकल साइंस फॉर 10 years मिनिमम 10 years ग्रेजुएशन इंटर्नशिप PG का 3 साल देन 1 साल का बॉन्ड ये सब चीज़ें करके जब वो 10 साल पढ़ाई करता है एट दैट टाइम दैट पर्सन अर्न 50,000 रुपीज़ फॉर 1 hour अगर सर्जन है तो ट्रेनर को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप सिर्फ सीपीटी करोगे और इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे 1 लाख रुपए महीना पर मंथ कमाना है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाना है दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल We've seen this, Rakesh sir. If you've noticed that whenever we've traveled out of India, correct, people say कि वो गोरा है तो उसको ज़्यादा importance देते हैं और ज़्यादा No, salary. no, it's not But like people don't understand that there is in part of their formal education they spend years studying human biomechanics and exercise physiology, correct? And I don't think so. India में है. Do you think we have We started. like a proper from see, at a university level? Not the university level. At least we नहीं है, right? we नहीं है, taken नहीं an initiate. Correct. At least my academy, Rakesh Udyar Fitness Academy, I have taken an initiative. What's the duration of this? For normal CPT is 3 months. Then level 1, level 2, you can keep upgrading. And there is bodybuilding. There is SENA करके course है हमारा sports and science पे, which we combined with bodybuilding. We can do that course also. There are different courses out there. And what's the plan like? What is the roadmap for the See, next? right now, like I'll openly say it. Like पहले जो academy थी, उसके अंदर लोगों ने cheat किया और they did a fraud. And I've started with my names with Rahul sir officially, and we are already working on Pune, Mumbai, and Hyderabad. So there is nothing. The other people who thought they will take away and run away. तुम नाम लेके जा सकते हो ब्रांड नहीं लेके जा सकते हो so if you are a brand and you created something for somebody it's not going to run away nobody can take my name away नहीं ले right? So सकते। it's like that and there's the thing which I'm telling you why this they told me they don't know Rakesh Udyar being working with me for 3 years
Can you beat that? And like, not only that, like, a lot of people told me this. Lot of people. And I proved them wrong with my work. And I've already proved half of people wrong. What I've did. ये तो एकदम बेस लेवल का है मतलब we've seen people together, right? So Yeah, of course. Let's see. You don't know the internal picture now. People what's the roadmap for now for Rakesh Udia's academy? What is the roadmap for the next what's the vision? What do you see? My vision is to go all over India. Not all over India, all over worldwide. And I'm working on it. Very soon you will see some other states also. Very soon. I am 100% sure. I'm Like 100% sure. after this, I'm jumping on Calcutta very soon. It's on pipeline. Calcutta, Delhi, maybe in Punjab. And what's your understanding of this whole industry? How promising is this industry as a trainer? And what do you see as a roadmap for the academy? ओके तो काफ़ी सारे लोग ब्लड वर्क्स करते हैं, ठीक है, कंपनी में होता है, आजकल जिम के बाहर क्लब के बाहर भी ब्लड वर्क डन होता है, बट उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये किया है हमने तो क्यों किया है. और जब कुछ वैल्यू डिस्टर्ब आती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूजुअली किसी एमडी के पास जाएंगे. देयर आर 20-30 पीपल्स आउटसाइड वेटिंग फॉर देयर कंसल्टेशन, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है. दे हैव डेफिनेटली प्रीटी गुड नॉलेज, बट जैसे कि आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, आपका एलडीएल लेवल बढ़ा है इतना, आप ओवरवेट हो 15 kg, आप फैट लॉस कर लो. तो ये दुनिया में किसी को बोल के तो फैट लॉस नहीं होगा, जस्ट 15 kg लॉस करो. तो नाउ कुछ टाइम में इंडिया बिकम अ कैपिटल ऑफ डायबिटिक पीपल. एक्चुअली चाइना को बीट करके हम आ भी चुके होंगे अभी नंबर 1 पे. तो उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसमें ओबेसिटी काफ़ी रोल प्ले करता है. तो ट्रेनर्स फिटनेस इंडस्ट्री को काफ़ी सारा स्कोप है, क्योंकि जो काम जिसने करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो उसका काम इनको करना पड़ रहा है. अभी ट्रेनर एक स्पेक्ट्रम में रह के काम नहीं कर सकता है. पहले क्या होता था कि जैसे आपने कुछ इनिशियल फर्स्ट हाफ में बात की कि ट्रेनर काउंट दे रहा है, बट अभी कोई ट्रेनर को अप्रोच करता है तो उसको अल्टीमेटली वांट रिजल्ट. मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इतना होना चाहिए, मेरा लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है ये होना चाहिए, मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 105 है, उसको मुझे बिलो 85 लेके आना है. तो जो ये ट्रेनर सब चीज़ें कर पाएगा, उसका टेक्निक, फॉर्म, एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन, ब्लड वर्क देखना, तब जाके वो आराम से मंथ का काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा पाएगा. तो मेरा तो एम यही है कि ट्रेनर को इतना एजुकेट करो कि वो सामने वाला कोई भी डिसीज कंडीशन लेके आए, उसका हाइपरटेंशन की केस हो, प्री डायबिटिक हो, डायबिटिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसने उस डिसीज़ के बारे में पहले उसको समझाना चाहिए. और मेडिसिन का पार्ट तो डॉक्टर देखेगा, बट लाइफस्टाइल का पार्ट मैं आपका देखूंगा. और आपका जो ये प्री डायबिटिक कंडीशन में इसको कैसे रिवर्स कर पाऊंगा, आपका ब्लड प्रेशर में 5 mm से कैसे नीचे लेके आऊँगा. जब वो उसको कन्विंस करेगा और प्रॉमिस करेगा, और ये ओवरनाइट होने वाला चेंज नहीं, दैट विल टेक 1 year, तो उसको उतने टाइम के लिए वो पे भी कर देगा, क्योंकि इंडस्ट्री में इतनी बात उससे पहले किसी ने की ही नहीं थी. जस्ट बॉडी मेजरमेंट ले लो, बात खत्म करो, ओवरवेट है बता दो और स्टार्ट कर दो. That's when we introduced Pango, correct? That was the very idea that Azhar alone कितने को न्यूट्रिशन दे सकता है, correct? Exactly. And I remember you asked me, so I thought, okay, ठीक है, let me take time now to tell what Pango is. So when we started Pango, we were very clear that we've always discussed, Rakesh sir and I, we've always discussed that जो हम कर रहे हैं उसको स्केल कैसे कर सकते हैं, स्केल अप कैसे कर सकते हैं. एंड we've seen how even in his way, आप टीम मेंबर्स बढ़ाओगे एंड देन वो टीम मेंबर बाहर चले जाना, इट इज़ something which we've always discussed, that how do we really grow. And that's where when we introduced Pango, the idea was this only कि आज एक डॉक्टर और एक ट्रेनर, एज यू सेड, बता तो देता है कि 15 किलो कम करना है, कैसे करना है और कैसे करना वो भी बता दिया, बट लेकिन वो हैंड होल्डिंग और जो गाइडेंस है वो नहीं होती है. दैट्स व्हेन वी थॉट दैट लेट अस गिव this helping hand to the trainer and the doctor. Exactly. So now at Pango, what we do that if you are a trainer,
if you're a doctor, we know that you don't have the time. Even if you understand nutrition, we know that you don't have the time To calculate carbohydrates, That's protein, where we fat. say that you partner with us. We will take care of everything related to diet and nutrition for your patient and for your client. And we make sure that in collaboration, the doctor, the trainer, the nutritionist works together to give the best outcome to the person, because I think that's the most important thing. अब तक होता क्या था, डाइटिशियन कुछ और बोल रहा है, डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, ट्रेनर कुछ और बोल रहा है, एंड who used to suffer in the end? The client or the patient. Correct? That's what we thought that with Pango, that's where we are looking to change the game. सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को competition नहीं देखेंगे, तो ही, as you said that we in India now are becoming the diabetic capital, okay, or have become the diabetic capital. I think I very strongly believe that everyone coming together, everyone working collaboratively is the only way to really make an impact at a population level. And I think when we started the conversation, मैं राकेश सर को बोला सिर्फ आधा घंटा चाहिए, and now that I'm looking at the time, आधा नहीं, 1 घंटा नहीं, it's almost 90 minutes. तो I think we've spoken a lot, and फिर भी ऐसा लग रहा है कि कितना बाकी है बात करना, correct? And Mike, one question to you also. Like, I've read your book, Eat Your Cake and Lose Weight. Outstanding book. I thank think you sir, it's thank you. one of the best book I've read it. Coming from you means a lot. So how this A game you started? Okay, that's a very good question. So it's just now that I've announced. When I started the podcast, okay, with the book, it was for the entry level people. People wanted to get started on their transformative journey, but itna sara content and information tha, they did not have clarity. That's how the book came in, correct? Okay. But the A Game podcast, I was very clear that the kind of guest that I will be calling. Okay. And even when I wrote the book, there was one thought कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ और what do I want them to get out of it. Correct? The same approach I took for the name of the podcast. And I realized that all the people that I'm bringing on, they are not mediocre people. They've done something extraordinary. I always believe that you should put in the effort to be the extraordinary. You should bring your A game in every aspect. बच्चे को पूछेंगे स्कूल में कितना आया, मार्क्स हाई चाहिए, हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं कोई बोलता है कि Exactly. आप बेस्ट रहो, काम चलाओ एटीट्यूड ही चलता है हेल्थ को लेके, करेक्ट? सो आई वॉज वेरी क्लियर दैट थ्रू दिस शो I wanted to bring in guests. Through them, through the conversation, the people should get inspired to bring their A game to their health. वहाँ पर काम चलाओ मत करो. We are पैसा कमाना है, A game. बेस्ट गाड़ी चाहिए, बेस्ट घड़ी चाहिए, बेस्ट मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, सब चीज़ बेस्ट चाहिए. हेल्थ में why not we look for the best? And why not we put in the efforts to get to our A game? So that's how it came. That's nice. And what is your A plan? The A plan at the content level is to see how best we create awareness on various aspects, how they get the right information. आज के टाइम में आई फील एक टाइम था इन्फॉर्मेशन नहीं था या ज़्यादा नहीं था या एक्सेसिबल नहीं था. आज ज़्यादा भी है और इजीली एक्सेसिबल ही है, लेकिन उसमें से सही कौन सा है इज़ द मेजर चैलेंज. So the idea is that at a content level, even if I am able to help them declutter and get them the right information, the right content, I think on the content front, that is my plan for the A game content. At the work front, at Pango, as I just mentioned, the idea is to how to bring everyone together to make an impact at a population level. That's good, man. I'm really happy for you. There is a section which I wanted to do. It's a 10-minute section wherein I will ask 10 rapid fire questions. The section is called Buzzer with Azhar. There is only one simple rule. The moment I ask you the question, you cannot think. Within a second, you have to answer the question. Okay? All set? All set. So, Rakesh sir, Yes. बहुत सारा ज्ञान हो गया. जी. Okay? I have a section on my show which is called Buzzer with Azhar, which is just like a rapid fire round. Okay? I'm going to ask you a few questions. एक ही रूल है, बिना सोचे आपको बिना टाइम लिए आंसर देना है.
in one word or two words max. All set? All set. Ready? Yep. Okay. Just a few questions and then, all right, let's get started with buzzer with Azhar. Let's start with the first question. There are a few favorites that I'm going to ask. Favorite client? Salman bhai. Arey, I think that's one thing which was a very obvious answer. Favorite movie? For me, Yes. Man of Honor. Nike or Asics? Both. Party wear Nike and gym wear Asics. Favorite book? One of my favorite book, which I've read it about nutrition, Eat the Cake Arey and Lose kya Your baat Weight. hai. Love you. Love you. Kya baat hai. Favorite workout? Legs, any compound movement, maybe a legs. Favorite cheat meal? There's nothing called cheat meal, but I definitely, if I feel hungry, I'll buzz anything. There's nothing cheat meal. Burger or pizza? Burger, Pastry or ice cream? pastry. And I know that in addition, there would be a pancake as well. Okay. I'm going to name a few names. I'm going to say a few names. You have to tell me one word that comes to your mind. Okay. Okay? सोचना नहीं है. Okay. ठीक है? अरबाज खान. भाई का भाई. अरे वाह. सलमान खान. सबसे बड़ा भाई. आमिर खान. Time perfectionist, रामचरण. honest, down to earth. अजहर अली सैयद. Best buddy, क्या बात है. फातिमा सना शेख. person which I can talk to anything to her. रिया चक्रवर्ती. Daring Baz. क्या बात है. And the final one, सोनाक्षी सिन्हा. Chulbul Pandey, she's a chulbuli. Lovely, lovely. Thank you so much, sir. I hope you had fun. I had a fabulous time. Thank you for inviting us. My pleasure. I think everyone who sees this episode, itna value hai, and we try to have some fun as well. Yes. And before we wrap the show, if you can take a minute and give out one message to everyone. It could be anybody, If there is one message or if there is one thing which you would really want to change, what would that be? For me, is knowledge is power. Gather your knowledge. Come to my academy. My academy's name is Rakesh Udiyar Fitness Academy. This is in Pune, Mumbai, as well as Hyderabad. And upgrade yourself. Keep upgrading yourself and keep your head high and walk straight. Lovely. How about you, Dr. Rahul? Okay. तो मेरा भी कुछ इस तरह से ही है. अपग्रेड करो खुद को. राकेश सर इस पोजीशन पे भी स्टिल खुद को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं. मैं भी काफ़ी सारे, मुझे अगर आपको पढ़ाना है तो मुझे भी काफ़ी सारा खुद का नॉलेज अपग्रेड करना होता है. तो रिसेंटली लास्ट मंथ आई परचेस अ बुक कॉस्टिंग अराउंड 38,000 रुपीज़. तो ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो विदाउट अपग्रेडिंग योर नॉलेज आप कहीं ज़्यादा आगे तक बढ़ नहीं सकते. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Akshay Dada, one message for everyone. लाइक राकेश सर एवरी टाइम सेड लाइक, और वो मैं खुद पे अप्लाई भी किया, लोगों को भी बोलते जाता हूँ कि कीप योर शूज ऑन ईगो आउटसाइड ऑफ योर होम ऑल्सो, आउटसाइड द जिम ऑल्सो, एंड आउटसाइड ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड. Lovely, lovely. Thank you so much. And having known Rakesh sir and all of you all for such a long time, there's one thing, as you mentioned about constantly upgrading and learning. And while the whole show is about bringing your A game, one thing that I've learned from, I've seen, witnessed firsthand from Rakesh sir is that no matter how high you reach, no matter how best you are in your game, no matter that you're bringing your A game, just like him, stay grounded, because times change. The only thing that you should not change is that never forget where you came from. I hope you enjoyed. I had a fabulous time speaking with one of the best people that I know, and see you in the next one. Bye-bye. Thank you. Thank you.